Welcome or welcome back, champions. Today we are going to solve exercise 3.3. So let's begin. So first question is solve the following pair of linear equations by elimination method and substitution method. हमें linear equations given है, हमें elimination method से भी solve करनी है, substitution से भी solve करनी है. तो पहले elimination method से solve करते हैं. So first equation is x plus y is equals to 5 and second equation is 2x minus 3y is equals to 4. So if we multiply our first equation by 2 and subtract it from second, so let's multiply equation 1 by 2. So 2 into x plus y is equals to 2 into 5. So 2x plus 2y is equals to 10. So now we have this equation and our second equation is 2x minus 3y is equals to 4. Now we'll subtract the second equation from this equation, that is 2x minus 3y is equals to 4. Let's subtract it. जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 2x पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, 3y नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, 4 पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा. सो 2x कैंसिल हो गया, 3 plus 2 5y इज इक्वल्स टू 10 minus 4 6. तो y की वैल्यू आ गई 6/5. नाउ विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हमारी इक्वेशन है x plus y is equals to 5. So x plus 6/5, value of y is 6/5 is equals to 5. Now we will transfer this. So x is equals to 5 minus 6/5. यहाँ पे 1 suppose कर लो, 1 और 5 का LCM 5 आता है. 5 divided by 1 5. So 5 into 5 25 minus 5 divided by 5 1 time. So 1 into 6 6. So 25 minus 6 gives us 19. So 19/5. So x की वैल्यू आ गई 19/5 and y की वैल्यू आ गई 6/5. So this we did using elimination method. Now we will solve it using substitution method. तो व्हाट वी डू इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम एक वेरिएबल की वैल्यू एक लीनियर इक्वेशन से निकाल के दूसरी लीनियर इक्वेशन में पुट करते हैं. सो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज x प्लस y इज इक्वल्स टू 5. सो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y. हमें x की वैल्यू मिल गई 5 माइनस y. इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. और सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. Now in place of x we'll write 5 minus y. So 2 into 5 minus y minus 3y is equals to 4. So 2 5 is 10 minus 2y minus 3y is equals to 4. अब इस 10 को उधर ट्रांसफर करेंगे. ये सेम वेरिएबल वाले नंबर से साथ में सॉल्व हो जाएंगे. माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का आएगा. माइनस 5y is equals to 4 minus 10. So minus 5y is equals to minus 6. Now y is equals to minus 6 upon minus 5. Minus से minus cancel. So y की वैल्यू आ गई 6/5. Now we'll put the value of y to find out the value of x. So x is equals to 5 minus 6/5. यहाँ पर 1 suppose कर लेंगे, LCM लेंगे. 1 और 5 का LCM 5. 5 divided by 1 gives us 5. So 5 into 5 25. Minus 5 divided by 5 one time. 1 into 6 6. So x is equals to 25 minus 6 19/5. So x की वैल्यू आ गई 19/5 and y की वैल्यू आ गई 6/5. So we did this question using both the methods, that is elimination and substitution. Now let's solve its next part. So our second part is 3x plus 4y is equals to 10 and 2x minus 2y is equals to 2. So this is our first equation and second equation. इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. तो हम x वाली टर्म को एलिमिनेट करेंगे. x वाली टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हमें इसे 2 से और इधर इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 3. तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 3 is 6, 6 6 plus 4 2 is 8, 8y is equals to 10, 2 is 20. On the other hand इसको 3 से करना है. 3 2 is 6, 6 6 minus 3 2 is 6, 6y is equals to 3 2 is 6. अब इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा. 8 plus 6 14y
20 minus 6 gives us 14. Now this 14 is in multiplication, it will go in division. So 14 divided by 14 gives us 1. So value of y is 1. Now we'll find the value of x. So 3x plus 4y is equals to 10. Now in place of y we'll put 1. So 3x plus 4 into 1 is equals to 10. So 3x is equals to 10. Now this 4 ones are 4, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा -4. So 3x is equals to 6. This 3 is in multiplication, it will go in division. So x is equals to 6 divided by 3 gives us 2. So value of x is 2 and value of y is 1. This we did using elimination method. Now let's do it using substitution method. Now using substitution method, first we'll find the value of x from equation 1 and then we'll put it in equation 2. So 3x is equals to 10. This 4y is in plus, so इधर जाके माइनस हो जाएगा -4y. अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा. So 10 minus 4y divided by 3. अब ये x की वैल्यू आ गई, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. So 2 into, in place of x we'll write 10 minus 4y upon 3 minus 2y is equals to 2. अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, ये मल्टीप्लाई होगा. 2 10s are 20 minus 2 4s are 8. So 8y upon 3 is minus 2y is equals to 2. यहाँ पर 1 सपोज कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे. 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, डिवाइडेड बाय 3 1 टाइम जाएगा तो इसका न्यूमरेटर सेम आ जाएगा. 20 माइनस 8y, माइनस का साइन आ जाएगा. 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 3 2 तो 6, 6y आ गया इज इक्वल्स टू 2. अब नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे. सो 20 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस की टर्म में ऐड हो जाएंगे, सेम वेरिएबल वाले हैं. तो 8 प्लस 6 14. सो 14y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2. अब इस 20 को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये 3 टू द 6 आ गई, प्लस में तो जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -14y. सो -14y इज इक्वल्स टू -14, क्योंकि 20 माइनस 6 14 होता है, 20 बड़ा है उसका साइन माइनस का तो माइनस आएगा. माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 14 गिव्स अस 1. नाउ वैल्यू ऑफ y इज 1. इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे. So x is equals to 10 minus 4 into 1. अभी y की वैल्यू हमने 1 फाइंड की थी, upon 3. So 10 minus 4 ones are 4 upon 3. So 6 upon 3, 6 divided by 3 gives us 2. So x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1. Now we'll solve its next part. So third part is 3x minus 5y minus 4 is equals to 0 and 9x is equals to 2y plus 7. तो इसको पहले 9x 2y को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, -2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. अब ये दोनों सेम फॉर्म में हो गई. सो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम x को एलिमिनेट करते हैं, ये 9 है, इधर 3. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला टर्म 9 हो जाएगा एंड देन विल एलिमिनेट इट. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. So multiplying equation 1 by 3. So 3 into 3, 9. 9x minus 5 3s are 15. 15y minus 4 3s are 12 is equals to 0. अब second equation को इसमें से subtract कर देते हैं. 9x minus 2y minus 7 is equals to 0. जब हम subtract करते हैं तो second equation के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस प्लस. So माइनस प्लस कैंसिल, 15 माइनस का 2 प्लस का माइनस प्लस माइनस होगा, 15 माइनस 2 13. So minus 13y plus minus 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 12 plus 7 gives us minus 5 is equals to 0. Now we'll transfer this minus 5. So minus 13y is equals to 5. इधर माइनस का था, यहाँ प्लस का हो जाएगा. Now we'll transfer this 13y. So y is equals to 5 divided by minus 13. So y की वैल्यू आ गई 5 by minus 13. As 5 upon minus 13. अब इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे. So 2 into minus 5 upon 13 plus 7 upon 1 सपोज कर लेते हैं. 5 to the 10 minus 10 upon 13 plus 7 upon 1 is equals to 9x. So 9x is equals to 13. एलसीएम आएगा, 13 को 13 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, न्यूमरेटर सेम आएगा, माइनस 10 प्लस 13 को 1 से डिवाइड करोगे 13 जाएगा, 13 7 is 91 प्लस माइनस माइनस 91 माइनस 10 is equal 81 upon 13.
9 मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जाएगा, सो 9 9 81, सो x की वैल्यू आ गई 9/30. नाउ विल डू द सेम क्वेश्चन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 2y + 7/9. अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे. इन प्लेस ऑफ x विल राइट, सो 3 × 2y + 7/9 - 5y - 4 is equals to 0. Now 3 1s are 3 3s are, so 2y + 7/3 - 5y is equals to 4. इस 4 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं. Now 1, 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3, so 3 divided by 3 gives us 1. न्यूमरेटर सेम आ जाएगा 2y + 7 minus 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, so 3 × 5 15y is equals to 4. Now in next step we'll transfer this 3 और इन दोनों टर्म्स को भी सॉल्व कर देते हैं. प्लस माइनस माइनस 2y और 15 - 2 13, बट 15 बड़ा है तो -13y + 7 is equals to 4 × 3. अब इस 7 को ट्रांसफर कर देंगे, 4 3 = 12, 7 प्लस का माइनस का आएगा, सो -13y is equals to 12 - 7. 12 - 7 gives us 5. अब इस 13 को ट्रांसफर करेंगे इज इक्वल टू -13, तो y की वैल्यू आ गई 5/-13. इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख के x की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो x इज इक्वल टू 2 × -5/13 + 7/9. So 5 2s are 10, x is equals to -10/13 + 7/1 सपोज कर लेते हैं अपॉन 9. 13 और 1 का एलसीएम आता है 13, प्लस माइनस माइनस, सो 81 अपॉन, अब ट्रांसफर कर लो 13 × 9, 9 1s are 9 9s are, सो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 9/13. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. So our next part is x/2 + 2y/3 is equals to -1. ये है एक इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन है x - y/3 is equals to 3. तो सबसे पहले इस इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं. 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा. 6 divided by 2 gives us 3. 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 6 divided by 3 gives us 2. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4y is equals to -1. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस 6 को ट्रांसफर करेंगे, सो 3x + 4y is equals to -1 × 6. 3x + 4y is equals to -6. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. डिनोमिनेटर में 1 सपोज कर लो. 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3. 3 divided by 1 gives us 3. 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x minus 3 divided by 3 goes 1 time. 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y is equals to 3. अब नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को ट्रांसफर करेंगे, सो 3x minus y is equals to 3 × 3. So 3x minus y is equals to 9. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गई. अब सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सो पहले सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से. एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशंस के किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना होता है. सो व्हेन यू विल सी दीज इक्वेशंस, आप देखोगे जो x वाली टर्म्स है वो सेम है, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9. अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, एंड देन प्लस वाली वैल्यू माइनस में. तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा. 4 + y मीन्स 4 + 1 5 इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस प्लस होता है 9 + 6 15, बट दोनों टर्म्स माइनस के हैं तो माइनस का साइन आएगा. नाउ दिस 5 इज इन मल्टीप्लिकेशन, इट विल गो इन डिवीजन, सो y इज इक्वल्स टू -15 divided by 5. 5 1s are 5 3s are माइनस का साइन है, so y is equals to -3. y की वैल्यू आ गई -3. इसको इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं. so 3x minus y की वैल्यू है -3 is equals to 9. now 3x ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +3 is equals to 9. इस 3 को ट्रांसफर करेंगे, सो 3x is equals to 9 minus 3, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा. So 3x is equals to 9 minus 3 is 6. Now this 3 is in multiplication, it will go in division. So x is equals to 6 divided by 3, which gives us 2. So x की वैल्यू आ गई 2.
एंड y की वैल्यू आ गई -3। अब सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। नाउ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा प्लस वाई। अब ये 3 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 9 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू मिल गई, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। So 3 into 9 plus y divided by 3 plus 4y is equals to -6. Now 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होंगे। 9 plus y plus 4y is equals to -6. y और y वाले टर्म ऐड हो जाएंगे, so 5y इज इक्वल टू -6। इस 9 को ट्रांसफर करते हैं, इधर प्लस का यहाँ पर माइनस जाएगा, सो -9। 5y इज इक्वल टू 6 प्लस 9 15, माइनस का तो -15। नाउ दिस 5 इज इन मल्टीप्लीकेशन, सो इट विल गो इन डिवीजन, सो -15 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स अस -3। अब y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू 9 प्लस y की वैल्यू आई है -3। So -3 upon 3 plus minus minus. So 9 minus 3 divided by 3, that is 6 by 3 gives us 2. So x की वैल्यू आ गई 2 and y की वैल्यू आ गई -3. So our first question is completed. I hope this is clear. Thanks for watching.